Hey guys, welcome back to the channel. Today I'm in a very remote village of Kerala called as Kuttampuda, which is home to one of Kerala's most luxurious villas. Nestled on the banks of the river Periyar, welcome to Periyar River Lodge. And in this video, I will be taking you along with me as we stay here for 2 nights, sharing what it's like to experience 5-star hospitality and comforts in such a remote location. And if you guys don't know, in this playlist, we are road tripping across Kerala with Marvel Tours, exploring some of the most luxurious villas Kerala has to offer. It's a 12-day road trip from Periyar to Munnar to Vagamon to Lake Vembanad to Aleppi and back to Kochi. All these places have some really ultra premium villas and I cannot wait to share all of them with you. So make sure to check out the playlist after you see this video. Anyways, put on your headphones and let's get this video started. Hey guys, welcome back to the channel. Today I'm in one of India's most luxurious villa. Today I'm in Kerala in this place called as Periyar River Lodge. I'm here for 2 nights and I cannot wait to take you along with me. Let me tell you how we got here and where this place actually is. थोड़ा logistics बता देता हूँ इसके बारे में. So basically we landed at Cochin Airport. You can come to Cochin from any part of India. You can just direct flight है and airport काफ़ी well connected है. So you can come here and Cochin Airport से this place is just 1.5 hours ahead. I want to give a big shout out to Marvel Tours for arranging all the internal transport for this trip. If you guys are ever coming to Kerala, just contact Marvel Tours. उसका contact, उसके links सब यहाँ पे आ जाएंगे description में, info card में, all the details are there. उनकी गाड़ी, उनके drivers are just top notch, very well maintained cars, neat and clean. Drivers भी उनके very well mannered, well spoken, well informed, knowledge about local laws, authorities, कहाँ पे क्या चीज़ मिलेगी नहीं मिलेगी. It's almost as if you're just traveling with a local. कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा. So whenever you're coming to Kerala, just contact Marvel Tours and they will arrange everything for you. Not only internal transport, if you guys need any help with planning your trip to Kerala, you can just contact them. They have all travel solutions when coming to Kerala, what kind of places you want, where do you want to go. So they will guide you in the best way possible, right? ड्राइवर ने हम लोग को पिकअप किया एयरपोर्ट पे एंड यहाँ पे लेकर आए. गाड़ी इज़ फुल्ली डेक्ड अप विथ वाटर एंड स्नैक्स एंड knickknacks and छोटे छोटे मेंटोस एंड एवरीथिंग. वेरी नाइस टच. एंड हम लोग ड्राइव करके इधर आए. ड्राइव वॉज वेरी नाइस. यू जस्ट नो दैट यू लैंडेड इन केरला. द सेटिंग, द वाइब, द foliage, everything just shouts of Kerala. एंड हम लोग सनसेट के टाइम पे ड्राइव कर रहे थे. वी स्टॉप्ड एट 2 places. एक ब्रिज अच्छा था, वहाँ पे शॉट्स मुझे बहुत अच्छे मिले एंड एक जस्ट रिवर बेड के अराउंड रोड जा रहा था. जस्ट लुक एट ऑल दीज शॉट्स सनसेट के टाइम पे. इट वॉज ब्यूटिफुल ड्राइव. रोड्स ऑल ओवर केरला आर वेरी नाइस एंड बहुत ही स्मूथली यहाँ पे आ गए. बेसिकली दिस प्लेस इज़ इन दिस स्मॉल विलेज कॉल्ड एज कट्टमपुड़ा. सो इफ़ यू वांट टू सर्च ऑन गूगल मैप्स इट्स कट्टमपुजा, बट लोकल लैंग्वेज में कट्टमपुड़ा बोलते हैं. दिस इज़ लाइक 90 minutes away फ्रॉम कोचिन एयरपोर्ट. एंड यहाँ पे वी आर लिविंग इन दिस प्लेस कॉल्ड एज पेरियार रिवर लॉज. ये जो प्रॉपर्टी है इट्स बेसिकली a 75-year-old प्रॉपर्टी दैट हैज़ बीन रिनोवेटेड एंड मॉडर्नाइज्ड अकॉर्डिंग टू ऑल मॉडर्न स्टैंडर्ड्स. वो लोग ने 2018-2020 में पूरा अच्छे से रिनोवेट किया है इसको एंड सीम्स लाइक अ वेरी वेरी नाइस प्रॉपर्टी. इट्स ऑन द बैंक्स ऑफ वन ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द पेरियार रिवर. ओके, सो ये आगे जाके पेरियार रिवर को ज्वाइन करते विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिवर्स एंड द लार्जेस्ट रिवर्स इन केरला, राइट. बेसिकली ये है एक पूरा प्रॉपर्टी है विच है. यहाँ पे एक 1 विला है एंड इट इज़ मैनेज बाय स्टाफ. यहाँ पे एक मैनेजर है. यहाँ पे पीछे फार्म्स है, कोकोनट ट्रीज़ है, रबर ट्रीज़ है, सब प्लांटेशन है. प्लांटेशन के अंदर ये बेसिकली एक लॉज है, राइट. फर्स्ट थिंग हम लोग को कोकोनट वाटर दिया, अच्छा सा कोल्ड
कोकोनट वाटर फ्रिज में रखा हुआ था, दिस टेम्परेचर कंट्रोल्ड, दैट्स अमेजिंग। कोकोनट वाटर दिया एंड सब कोकोनट जो है यहाँ प्रॉपर्टी पे ही होते हैं। व्हाट लग्जरी इज़ दिस कि यहाँ पे कोकोनट है, यहाँ पे ही चाहिए तोड़ दो एंड यू कैन जस्ट हैव इट। It's amazing, right? Let me give you a small tour of this place. I don't even know where to begin, but let me give a small tour. अच्छा सा ड्राइवे है, you come from the driveway, विला का एंट्रेंस है। प्रॉपर्टी बहुत बड़ी भी नहीं है, you can easily walk around the property in like 5 to 10 minutes, right? So एंट्रेंस है, एंट्रेंस से once you enter into the main living area में first thing on the left is a dining table, on the right is a small kitchen area है where you can sit, have a good time. Everything सब बहुत ही डिटेल में किया हुआ है, like I can see के mat placements, knife, spoon, fork, like everything is just immaculately placed. The attention to detail is very very high. I constantly see जब हमारा खाना भी हो जाता है, I see people just constantly rearranging all the spoons, the soup spoon, the dessert spoon, everything is very immaculate. छोटा सा pantry है, वहाँ पे माइक्रोवेव है, फ्रिज है, all kinds of glasses है, वाइन, शैम्पेन, विस्की, बियर, ऑल काइंड्स ऑफ ग्लासेस वहाँ पे अवेलेबल है। सेंटर में ही वहाँ पे एक कॉय पॉन्ड है, राइट, एंड यू कैन सी ऑल द फिशेस देयर। सच अ नाइस टच, ओपन टू एयर कॉय पॉन्ड है एंड सेंट्रल में एक वाटर फाउंटेन, वाटर पीस है। व्हाट आई हैव बीन टोल्ड इज के ये वाटर पीस को एल्गे लगाने के लिए बहुत मेहनत लगती है एंड इट्स कॉस्ट अ लॉट। ये एल्गे जो है वो फ़िश के लिए बहुत अच्छा रहता है। सो एल्गे लगाने के लिए ऑल्सो देयर वाज अ प्रोसेस सो दैट फ़िश हेल्दी रहे अंदर, एंड ऑफ कोर्स मेंटेन करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। फॉलोइंग दैट इज़ अनदर रीडिंग एरिया, छोटा सा लाइब्रेरी बनाया हुआ है, बाइनोक्यूलर्स है बिकॉज यहाँ पे बर्ड्स बहुत आते हैं। ओके, very close to this villa is this place called as the Thattekad Bird Sanctuary, and on the way we saw many people coming for bird watching as well. बड़े बड़े कैमरा लेके, you know, like 1000 mm के पूरे बड़े बड़े कैमरा जो लेंसेज होते हैं लेके I could see people coming for bird watching and photography. So यहाँ पे Thattekad Bird Sanctuary है, so इसलिए बाइनोक्यूलर्स रखें। यू कैन ऑल्सो सी बर्ड्स राइट हियर बिकॉज रिवर बेड है, मॉर्निंग इवनिंग में बर्ड एक्टिविटी बढ़ती है, सो दैट्स नाइस। अच्छा सिटिंग एरिया है, वो छोटा सा लाइब्रेरी है वेर यू कैन ऑफ कोर्स दे हैव लॉट्स ऑफ बुक्स अवेलेबल, एंड दोनों साइड पे आइडेंटिकल बेडरूम्स हैं। ओके, सो बेसिकली दिस प्लेस कैन ऑक्यूपाई मैक्सिमम 6 पीपल, 2 बेडरूम्स एंड एक एक्स्ट्रा बेड हर एक इसमें लग जाता है। व्हाट आई हैव बीन टोल्ड इज के लेट्स से अगर आप 2 ही जन हो, दे विल नॉट रेंट आउट द अदर बेडरूम, वो आपके लिए पूरा विला हो जाएगा। सो बेसिकली यू रेंट आउट द विला एंड नॉट जस्ट द रूम, राइट। सो इवन इफ 2 जन का ग्रुप है तो ये विला आपका है, 6 जन का है तो भी ये विला पूरा आपका है, राइट। रूम्स बेडरूम्स काफ़ी डिसेंट है, कंफर्टेबल बेड्स है, अंदर बेडरूम में लगेज एरिया है एंड एक छोटा सा स्टडी है, टेबल वेर यू कैन सिट रीड अ बुक, एयर कंडीशनड है, बोथ द बेडरूम्स आर एयर कंडीशनड, बाकी ऑल इज़ ओपन टू एयर, एंड अंदर एक बाथरूम है विच इज़ ऑल्सो ओपन टू एयर। वेरी नाइस फिटिंग्स एक्चुअली, जो बेसिन का जो फिटिंग्स है वो ऊपर से एक पाइप आता है, यहाँ से एक नल का है, वेरी यूनिक, मैंने ऐसा कहीं पे नहीं देखा है। एंड आई लव ओपन टू एयर बाथरूम्स एंड शावर्स, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, इट्स वेरी वेरी रिलैक्सिंग। नीचे पत्थर है, ऊपर स्काई है, विंड आ रहा है, बर्ड का आवाज़ है व्हेन यू आर शावरिंग एंड जस्ट सिटिंग, इट्स सो नाइस। There is just something very relaxing about, you know, doing your business in the open, like it's so good. I don't know, it's a weird thing. Both the bedrooms के बाजू में ही there is a large window, okay, so ये large window opens up into the main balcony area, like a main balcony area which is connected in both the bedrooms. So you open it and तुम्हारे bedroom से आपको सामने के river का पूरा view मिलता है। If you're just sitting in your bedroom, you can just see the water, you can just see the river just flowing, you can see the birds. It's so relaxing यहाँ पे, और कुछ आवाज़ नहीं है, the water flowing, the birds and just the sound of leaves rustling in wind. Outside भी बहुत सारे sit outs है, you can just sit, बहुत सारे chairs है, and जो classical दादाजी chair होती है ना बड़ी लंबी सी, you can just recline, पैर लंबे करके you can just sit, 2 दादाजी chairs है, and एक यहाँ पे swing है, right, and swing के पीछे ये infinity pool है। मैन अभी मार्च है, सो मॉडरेटली गर्म है, अंदर पड़े रहना इज सच अ नाइस थिंग, दैट इज़ व्हाट वी डिड। हम लोग आए, सीधा अंदर चले गए एंड मैन इट वाज सो रिफ्रेशिंग। एंड पीछे ही यहाँ पे बहुत सारे लाउंजिंग एरियाज़ है, पूरे इतने छोटे से एरिया में भी दे मेड सच स्मॉल चिल स्पेसेस। ये इधर चेयर्स, इधर लाउंजर्स, उसके पीछे टेबल्स, ये साइड पे भी लाइक 4 हाई चेयर्स है वेयर यू कैन जस्ट सिट, सो लॉट्स ऑफ चिल स्पेसेस।
एंड ऑल्सो आउटडोर शावर भी है नेक्स्ट टू द पूल ऑफ कोर्स व्हेन यू गेटिंग आउट एंड गेटिंग इन फ्रॉम द पूल. एंड ये पूल के सामने इज़ लाइक अ बिग लॉन एरिया, राइट. लॉन एरिया में 2 tables हैं, यू कैन हैव योर मॉर्निंग कॉफ़ी, मॉर्निंग टी, यू कैन जस्ट चिल, यू कैन हैंग आउट इन द लॉन एरिया, राइट. द एंटायर प्लांटेशन भी बहुत अच्छा है, लाइक छोटे छोटे बहुत सारे प्लांट्स है, फ्लावर्स है, फ्लावरिंग प्लांट्स है, एंड बहुत अच्छे से लोग ने डेकोरेट किया है. लाइक हवा में ही ना, लाइक यू कैन जस्ट फील व्हेन यू लिव इन सिटीज़ ना, यू कैन जस्ट फील कि एयर क्वालिटी कितनी ख़राब है हमारी, एंड यहाँ पे आके इट्स ब्यूटिफुल. एंड दैट इज़ बेसिकली इट, दैट इज़ द एंटायर प्रॉपर्टी. बाकी इफ़ यू सी इन द ड्रोन शॉट, बाकी साइड पे प्लांटेशन है, हमारा एक्सेस ये साइड पे, बाकी सब प्लांटेशन है. तो वन ऑफ द मॉर्निंग्स व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन ऑल्सो गो फॉर द प्लांटेशन वॉक. ओके, सो यहाँ के जो स्टाफ है वो आपको लेके जाएंगे मॉर्निंग में. दैट इज़ व्हाट वी डिड. मॉर्निंग में हम लोग प्लांटेशन वॉक के लिए गए. अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ द रिवर यू कैन जस्ट वॉक, अलग अलग जो प्लांट्स है वहाँ प्लांटेशन है, यू कैन सी एंड जस्ट सी द रिवर, जस्ट वॉक बाय द रिवर. इटसेल्फ इज़ सो रिलैक्सिंग. हम लोग को रिवर के बाजू में कहाँ चलने को मिलता है, राइट. दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे करने के लिए, राइट. सो यहाँ से ऑफ कोर्स एक जैसे बताया 30 एकड़ बर्ड सेंचुरी. इफ़ यू गाइस इंटरेस्टेड इन बर्ड वॉचिंग, यहाँ से कुछ 10 मिनट्स ड्राइव अवे इज़ दैट. 2 more places आई वॉज टोल्ड कि बहुत अच्छी है, वेरी सीनिक है. is this place called as Injathoti Suspension Bridge. I am butchering the names, local language के names, so I'm not pronouncing it that well. So I have written it. I'll try my best. There's this place called as Injathoti Suspension Bridge. वहाँ से views बहुत अच्छे हैं. There's this dam. Okay, so ये जो river है is controlled by a dam. So इसका flow जो है, जब dam का flow छोड़ते हैं पानी तो यहाँ पे बढ़ता है. So that dam is called as Bhutatanketti Dam. I don't know if I'm saying it right. यहाँ पे नाम आ जाएगा. So that is one more place you can visit. So you won't run out of things to do. And of course you can go boating in the river. Okay, kayaking, boating आप कर सकते हैं. Kayaking अभी थोड़े टाइम के लिए बंद किया है due to safety concerns. वापस रेगुलेट होएगा तो चालू हो जाएगा. But of course you can go for boating, right? So these are all the fun activities you can do around here. फूड की बात करें so pre-decided menu रहता है because this place is so remote. The manager of this place, Mr. Rahul, he has been in contact with us before we came. Like you know, कितना पर्सनलाइज लगता है कि मेरे आने से 2 दिन पहले ये लोग मुझसे कांटेक्ट में है कि क्या खाना है, क्या पीना है, व्हाट आर फूड प्रेफरेंसेस. मील स्टेप बाय स्टेप डिसाइड होते जाता है. दिस ऑल्सो हेल्प्स विथ फूड वेस्टेज. एट द सेम टाइम हमारे प्रेफरेंस का भी ध्यान रहता है. दैट्स वेरी कूल. सो ही वॉज कॉन्स्टेंटली इन टच विथ अस. हमारा फूड वगैरह, एंड फूड इज़ ओ माई गॉड. यहाँ पे एक मेन शेफ़ है. सो ही मेट अस येस्टरडे. वो बता रहा था हाउ ही मेक्स एवरीथिंग इज़ डन बाय हिम. मतलब सिंपल केरला पराठा बनाने से लेकर राइस बनाने से लेकर एवरीथिंग, फ्रेंच फ्राइज बनाने में एवरीथिंग ही इज़ द वन डूइंग इट, कटिंग, मेकिंग एवरीथिंग. वन मैन शो. फूड इज़ डिलीशियस. यूल गेट ऑल काइंड्स ऑफ फूड हियर, कॉन्टिनेंटल, लोकल, केरलन फूड. एंड आई एम अ बिग sucker for Kerala food because मेरा स्कूलिंग हुआ था कोयम्बतूर में. ओके, ग्रोइंग अप आई हैव ओनली ग्रोन अप ऑन साउथ इंडियन केरलन फूड, सो आई क्रेव फॉर दिस फूड. ओके, केरला पराठा, appam, stew, man, I just love these flavors. And special mention to the staff. Anything you want from here, नज़दीक में से कुछ भी चाहिए, they will get it for you. Okay, like कभी भी ना नहीं निकलता है. If you want something, it will be done. अगर आपको ये टाइम पे खाना चाहिए, okay, no problem. ये टाइम पे चाय चाहिए, no problem. ये टाइम पे कुछ भी और चाहिए, that's okay, it'll be arranged. ये टाइम पे बोट मंगानी है, that's fine. ये टाइम पे कोकोनट चाहिए. So never have I heard a no. Everything is managed कैसे भी करके. That's pretty cool. That's hospitality at its finest. So that is the small tour. थोड़े और शॉट्स दिखाता हूँ from the property. फिर हम लोग जाएंगे इवनिंग की बोटिंग के लिए. चलो.
Hey guys, and with that we come to the end of 2 amazing days here. Time किधर चला गया पता ही नहीं चला. You just want to stay here forever and ever, but 2 दिन कहाँ निकल गए पता ही नहीं चला. But unfortunately यहाँ से जाना पड़ेगा. It's a beautiful place. Morning में just sitting here, look at this. Sunrise हो रहा है, ठंड है अच्छी सी, क्रिस्प मॉर्निंग की धूप है, सामने रिवर जा रही है, एंड यू कैन जस्ट सी द मॉर्निंग में जो फिशरमैन है, जो बोट्स है, सब लेके जाते हैं. Such a nice calming vibe. If you ask me what are the down points of this place, if I had to, I'm just being very nitpicky right now, because you have to put this in the section कि क्या अच्छा नहीं लगा. Well, I think being very nitpicky, the place is little remote. Like तुमको emergency में कुछ चाहिए तो जल्दी नहीं मिल सकता है, but that is the point of coming to these such places कि it's a little remote and everything, but it is a little remote. आजू के बाजू में बहुत small villages है. That's one thing. It's not like अभी मन क्या खाने का है वो चीज़ अभी हो जाएगी, because of course it's a small village. यहाँ पे आए हैं वो, तो सब चीज़ वो लोग सोर्स करते हैं. Anything that you want has to be little pre-ordered, but I guess that's fine because it also helps with food wastage कि सब चीज़ यहाँ पे नहीं रखनी पड़ती है, and otherwise it's fine. कल हम लोग बर्ड वॉचिंग के लिए गए, बोट राइड के लिए गए. बोट राइड वॉज वेरी नाइस. सनसेट के टाइम पे बर्ड वॉचिंग, बर्ड एक्टिविटीज़ बहुत थी. स्पेसिफिकली हियर यू कैन सी हॉर्नबिल्स. या हॉर्नबिल्स बहुत अच्छे से दिखते हैं, ईग्रेट्स बहुत अच्छे से दिखते हैं, किंगफिशर्स बहुत सारे थे. एंड फ्रॉम व्हाट आई हैव बीन टोल्ड कि यहाँ पे एलिफेंट्स भी आते हैं. सो बेसिकली ये जो रिवर बैंक है, द अदर साइड इज़ मैन मेड. बेसिकली ये सब प्लांट किया है so that it makes for a very nice forest area, and this is a natural side of the forest, right? So what I've been told is कि अभी आज 2nd of March है, तो around 20th Feb को वो साइड पे एक एलिफेंट्स का झुंड भी दिखा था with baby elephants and everything. So यहाँ पे एलिफेंट्स भी आते रहते हैं. So it's a very nice quiet forest area, so you can come here, you can relax, have a very good time. I think morning का breakfast अभी हम लोग यहीं पे करने वाले हैं. We will be having breakfast here. Such a nice place to have breakfast. If you guys want to come and stay here anytime, booking links मैं description box में डाल दूँगा. Cost of course keeps depending on season and your meal plan. Okay, so ours was all inclusive, everything like breakfast, lunch, dinner, all inclusive. It can cost anywhere from between 35 to 40,000 rupees per night. Of course meals का वो change होते रहता है, but just to give you an estimate, it costs 35 to 45,000 rupees per night, and taxes is extra. Yes, definitely on the higher side, the expensive side. From what I've been told is that 90% of the people visiting this place are foreigners, like mostly Europeans and Americans जो आते हैं, they want to explore Kerala, so they stay here. I always keep saying invest in experiences, right? If you guys have a special occasion coming up, anniversary, birthdays, definitely think of this place. 2 दिन आओ, रुको यहाँ पे, enjoy Kerala. And it's a beautiful place. Let me know what you guys think of this place in the comment section. Let me know if it's worth it. Let me know if you like it. And if you guys have any doubts, put it down in the comment section. I'll be more than happy to answer them for you. Anyways, यहाँ से निकलते हैं, मुन्नार जाते हैं. Until the next time, stay safe, keep on traveling. I'll see you guys soon.